Good morning, students. Today we are going to begin with Civics Chapter 5, Judiciary. Here in this chapter, students, you will learn about the meaning of judiciary, the role of judiciary, structure of courts in India, as well as also the different branches of legal system. First of all, we will discuss the meaning of judiciary. Students, you have already learned that there are three organs of government. They are legislature, executive and judiciary. About legislature and executive we have already studied in detail. Now we are going to study the judicial organ of the government. Now what is judiciary? Judiciary is a branch of the government that interprets the law. It's a system of courts that administers justice. Children, all of us know that there is rule of law in our country. We say that law applies to all. Law is supreme. Everybody has to obey the laws. But what happens when somebody disobeys the law? If someone violates the law, what is the provision in our constitution? So our constitution says that there is a system of judiciary that a citizen can approach when a law is violated. अगर कोई पर्सन कानून की पालना नहीं करता या हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो हम कहाँ जाएंगे? We will move to the courts to get justice. So judiciary is that organ of government which settles disputes and provides us justice. Now we will discuss about the role of judiciary. The functions that judiciary perform, we will discuss those. First is dispute resolution. Students, judiciary settles disputes between citizens and the government, between two state governments and between the center and state government. अब लोग जो हैं उनमें डिस्प्यूट्स होते ही रहते हैं. जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारे दूसरे लोगों के साथ डिस्प्यूट्स समटाइम्स हो जाते हैं. तो वो कौन सेटल करता है? जुडिशरी. वो डिस्प्यूट्स अगर सिटीजन्स के बीच में आपसी डिस्प्यूट्स हैं या सिटीज़न का गवर्नमेंट के साथ है या टू स्टेट्स का आपस में कोई डिस्प्यूट है, जैसे वी कैन से दैट डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू रिवर वाटर्स एंड डिस्प्यूट्स जो हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है, वो सारे कौन रिजॉल्व करता है? जुडिशरी. सो फर्स्ट फंक्शन इज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. सेकेंड इज जुडिशियल रिव्यू. नाउ व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? We know that judiciary is the final interpreter of the constitution. So judiciary has the power to strike down any law passed by the parliament if it is against the basic structure of the constitution. कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, अगर जुडिशरी को लगे कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी उस कानून को रद्द कर सकती है. दिस पावर ऑफ जुडिशरी इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू. थर्ड फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. जुडिशरी जो है ये कानून की सर्वोच्चता को कायम रखती है. अगर कोई कानून का पालन नहीं करता तो उसे सज़ा दिलवाती है, देती है. इसके अलावा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कोई वायलेट करता है, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स इंजॉय नहीं करने देता, तो जुडिशरी हमें हमारे राइट्स दिलवाती है. एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट वी हैव द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. That right says that if anybody violates our fundamental rights, we can move to the courts and courts will provide us justice. कि जो व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जुडिशरी उसे सज़ा देगी और हमें हमारे राइट्स प्रोवाइड करेगी. सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ जुडिशरी. नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द रोल ऑफ जुडिशरी, बट द जुडिशरी कैन परफॉर्म इट्स functions in a proper manner only if it is independent. Now what is the meaning of independent judiciary?
It means that other branches of state like legislature, executive cannot interfere in the work of judiciary. कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, वो जुडिशरी के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे. द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड दे डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ. कोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हैं और ना ही उनके लिए काम करते हैं. जुडिशरी अपना काम इंडिपेंडेंट होकर करती है, ना कि किसी दबाव में आकर. Now it is very essential that judiciary works in an independent manner. To ensure this independence, इस independence को यकीनी बनाने के लिए the Indian Constitution makes certain provisions. हमारे Constitution में कुछ provisions की गई हैं. वो कौन सी हैं? जैसे the judges of Supreme Court and High Court are appointed by the President of our country with very little interference from other branches of government. जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें गवर्नमेंट की बहुत कम, ना के बराबर इंटरफेरेंस होती है. तो अगर उनको जजेस की अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का रोल होगा तो जजेस अपना काम इंडिपेंडेंट होकर नहीं करेंगे, वो उस गवर्नमेंट के दबाव के अंदर ही करेंगे. सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी. देन वंस दे आर अपॉइंटेड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम फ्रॉम देयर पोस्ट. जजेस जो हैं वो दे रिटायर एट देयर रिटायरमेंट एज, दैट इज द एज ऑफ 65 years. सो द नेक्स्ट इज द रिमूवल प्रोसेस इज सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर जजेस को भी अगर रिमूव करना पड़े, पहले तो रिमूव कर नहीं सकते, अगर रिमूव करना हो तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. इम्पीचमेंट मोशन जैसे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट पास करना पड़ता है उसे रिमूव करने के लिए, इन द सेम वे जजेस को हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट मोशन पास करना होता है. देन दे आर पेड वेरी हाई सैलरीज एंड अदर बेनिफिट्स ऑल्सो. Thus the judges work in an independent way without any pressure or fear of removal. उन्हें हटन इस चीज़ का डर नहीं होता कि उनको उनके ऑफिस से हटा दिया जाएगा. सो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डर के वो काम करते हैं.